Good morning, friends, and once again, welcome from sharetrading.school.com. Today, 2nd Jan 2017. Let me first of all wish you a very happy new year and prosperous and peaceful and most successful new year to all of you. Nifty analysis, I'll just revise what we have actually talked on 27th December. Last support, and as far as monthly close is concerned, high and close above this 20 EMA in monthly chart, and that is placed at 8,110. So probably 8,110 price will try and close much beyond that and test 8,150 as a resistance. So testing 150 as a resistance and closing above 110 is necessary for market, necessary for bull. And for that, we have started observing this diversion. So closing pullback of this Nifty above monthly 20 EMA, and that value then that time was 8,110, and hence we have said that we should actually cross this level and close much beyond that. So closing of Nifty above 8,110 and testing support at this level, that is the last month low, was our expectation. And if you look at current monthly chart, exactly after that we started seeing a pullback after 27th. If I'll just share with you our daily chart, then you will consider, you will really come to know what we talked about, and this is a diversion which we have shared with you. And 27 December we have seen a bullish day, and after that pullback had started. So on 27th morning we have said that Nifty should show a pullback, and closing of monthly chart above its 20 EMA is necessary. And if you look at this current monthly chart, Nifty has closed just above 20 EMA, because 20 EMA at present placed at 8,137 and price is actually 8,185.80. So objective of bulls, what we said is a bull will be feeling confident only and only if Nifty could cross above 20 EMA and close above 20 EMA in monthly chart, and that's what indeed we have seen. Considering this single candle or single bar formation, it shows that a hammer formation. If you convert it into the candlestick formation, then it will look like a hammer formation, and hammer formation is basically a bullish formation. So this at support level showing a hammer formation is a bullish pattern, and after this we are expecting a pullback of Nifty. Similarly, if you see this bar that was in the month of September 2015, almost similar formation, though that time actually this day's low had, this month's low had actually crossed previous month's low, but after that next month was followed with a bullish bar, though it remained sideways there for various reasons, because RSI was coming down from top and showing a lower highs and lower lows. So that could be reason, or that time fundamental could be different. But actually this attempt of bull after this bar, because I'm considering just single candlestick pattern formation or single bar formation, next bar was a bullish bar, or rather it was an attempt to form a bullish bar. Similarly, we can expect coming month there will be attempt of bull here, and probably bull will try and cross this month high, and that high is 8,275. So 8,275 once crossed, then we will see new bulls will be coming in place, and they will be actually taking a charge, and all that will be depend on the results session which are expected in this month. So on that we will be actually reacting. Probably that reaction will be we will expect in the second week of this month. Probably first week of month we may not see the proper action, but if that happens, then we will expect, as far as this bar is concerned, this bar is showing us that next bar or next month, since it's a monthly chart, should expect a bullish bar. So monthly chart analysis is showing us that yes, there will be a probability, but again, one thing which I like to show or concern over here,
if this bar, we look at this bar is actually within the range of previous month, that is in the month of November. The current bar is actually close within the range of this bar. So for longer term, if I'll have to say that bullish market or strength of bull will be actually tested above this level. So 8669, so 8700 level rather will be a future target, and Nifty should cross above 8700 level. Then actually bulls will show their real strength. So honestly, this month, even if it show a bullish bar, probably this level will create a problem, and after that price may come down and close within this bar. So there will be a multiple inside bars, and unless market close above this bar and create a higher high, higher low, and higher close above this, so 8700 level will be a very very crucial level for Nifty for coming month or coming quarter. So this is what our monthly analysis is concerned. Now I'll just quickly take you to one formation, yearly chart formation, and then we will go ahead with our weekly for chart formation or weekly follow. If we look at our yearly chart, why yearly chart? Because since new year has started, so I'll just refer it as a new weekly yearly chart. If you look at this bar, this is the last year, that is 2016 bar, which has closed within the center of this bar. So range, if you look at this, there it had created a spike at both the end, but closing is within the center, around the center of this bar. Though it looks a bullish bar, but the body, that is close, open to close, ये open और close का जो difference है, इसको हम body कहते हैं, और ये body काफी छोटा है. So this bar shows that this year was a totally confused year as far as while closing is concerned. Market made various attempts, but if you consider this high, that is 2015 high, that is 9120 level, ये जो level है, this level is very very important level as far as yearly chart is concerned. So हमारे हिसाब से अगर बुल्स को जीत या बुल्स का कोई ऑब्जेक्टिव होगा आने वाले साल में 2017 में, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि 9120 की इस लेवल को क्रॉस करे और कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड करे. तब तक ये बार्स इनसाइड बार्स रहेंगे, और ये बार के अंदर ये बार चल रहे हैं. एक्चुअली अगर आप यू लुक एट दिस फॉर्मेशन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए डब्ल्यू फॉर्मेशन था. अगर मैं लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट करूं तो शायद आप इसको ढंग से देख पाएंगे. सो दिस वाज एक्चुअली असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन था यहाँ पे एनुअल चार्ट में. ये हमने पिछले कई बार इसको रिफर किया है, कई एनालिसिस में रिफर किया है. सो ये असेंडिंग फॉर्मेशन वीकली चार्ट में जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन. ये कंसोलिडेशन फॉर्मेशन होता है और जनरली ये रनवे के सेंटर में आता है. सो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो मुंह है इसकी, इतनी ही मुंह हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ये ट्रेंड लाइन याद रखना ईयरली चार्ट में. सो हमारे आने वाले साल के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रखनी होगी, और मार्केट इस लाइन के पास आने के बाद बाउंस बैक हो रहा है, इसको भी याद रखना पड़ेगा. सो करंट ईयर यहाँ पे जब खुलेगा तो इस लाइन को सपोर्ट टेस्ट करके ये ऊपर वाला 9200 लेवल क्रॉस करेगा, तो हम लोग यहाँ से बुलिश रैली देखना शुरू करेंगे. सो 9120 की लेवल को निफ्टी क्रॉस करे तो इसके बाद ये मार्केट ट्रिमेंडस बुलिशनेस दिखा सकता है. अब आरएसआई की तरफ अगर आप देखते हैं तो आरएसआई 70 के लेवल पे चल रहा है, साइडवेज है. सो ये ओवरबॉट कंडीशन दिखा रहा है ईयरली चार्ट में. सो ये थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन ओवरबॉट कैन बिकम एक्सट्रीमली ओवरबॉट एंड सुपर डुपर ओवरबॉट. सो फंडामेंटल्स अगर इंप्रूव होते हैं तो 9200 के ऊपर निफ्टी जाए तो वी विल सी एक्सेलेंट रैली एज फार एज ईयरली चार्ट इज कंसर्न. नाउ आई विल कम बैक टू आवर डेली चार्ट. इसको मैं क्विकली डेली में पहले वीकली एनालिसिस कर लूं एंड देन हम लोग डेली चार्ट में जाएंगे. हमने देखा है एनुअल चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है. मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं कि हैमर फॉर्मेशन पुल बैक दिखा रहा है. वीकली चार्ट स्ट्रांग बुलिश बार
engulfing this bearish bar. So this is engulfing bullish formation. ये बार इस बार को क्लोज कर रहा है. अगर मैं इसको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में डाल रहा हूं तो क्विकली हम इसको देखेंगे. इनगल्फिंग बुलिश है. ये बुलिश बार इस बुलिश कैंडल को, बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है, क्योंकि यू कैन कॉल इट एज आउटसाइड डे, इनगल्फिंग बुलिश, सुनामी बुल. ये सारे फॉर्मेशंस ये बताते हैं कि जब भी ऐसा होता है, एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल को पूरी तरह से दोनों साइड से आउटसाइड जाए और उसकी रेंज को क्रॉस करे. यानी अगर आप यहाँ पे देखते तो यहाँ पे क्लोज था 7,985, वेरेज ये ओपन हुआ था 7,965. सो 20 पॉइंट नीचे की तरफ ओपन हुआ था और क्लोज तो आप देख रहे हो कि ओपनिंग से, इस कैंडल की ओपनिंग से काफी ऊपर जाके क्लोज हुआ है. सो ये एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है और स्ट्रॉन्ग बुलिश बार फॉर्मेशन बनता है. नाउ दिस 50 लेवल इज क्रूशियल लेवल. सो करंट लेवल से अगर हम देखेंगे तो 50 का ईएमआई 8,240 और 20 का ईएमआई 8,312, ये दोनों रेजिस्टेंस के लेवल पे है. ये ट्रेंड लाइन पास्ट, इन द पास्ट वी हैव प्लॉटेड दिस ट्रेंड लाइन. ये ब्लू लाइन जो है इसको हमने वीकली चार्ट में प्लॉट किया है. ये हम लोग फिलहाल उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं. सो बुल्स का स्ट्रेंथ इसके ऊपर आएगा. सो होते हुए क्या हो सकता है, आई विल जस्ट, अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, मैं प्रोबेबिलिटी को प्लॉट कर रहा हूं, यानी क्या होने के चांसेस होंगे अगर यहाँ पे बुलिश बार फॉर्म की करता है, इन मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को तोड़ता है. तो मूविंग एवरेज क्या करेंगे, ये 20 का ईएमआई जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 20 का ईएमआई 50 के ईएमआई के साथ यहाँ पे शायद क्लस्टर फॉर्म करे. सो यहाँ शायद एक आध हफ्ता बेरिश बार बने ताकि ये 20 का ईएमआई 50 के ईएमआई को टच करे. और जैसे ये 50 के ईएमआई और 20 के ईएमआई को यहाँ पे टच करता है, क्लस्टर फॉर्मेशन या शायद थोड़ा सा इसको क्रॉस ओवर करे नीचे की तरफ, और इसके लिए प्राइस को थोड़ा साइडवेज रहना होगा या बेरिश रहना पड़ेगा. और वो होने के बाद अगर 50 के ईएमआई को ये ऊपर की तरफ काटता है, यानी मैं इसको वापस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइडवेज मार्केट जरूरी होगा 50 के ईएमआई को ऐसा साइडवेज चलने के लिए, और बेरिशनेस जरूरी होगी थोड़ी 20 के ईएमआई को नीचे आने के लिए. ऐसा जब होगा तो प्राइस साइडवेज रहेगी, 100 के ईएमआई को सपोर्ट टेस्ट करते करते चलेगी, एंड देन 20 के ईएमआई 50 को इस तरह से काटे और वो भी 100 के ईएमआई के ऊपर, तो ये हमारे लिए बुलिश फॉर्मेशन होगा. सो ऐसा अगर ये करता है तो आने वाले महीने में, जो हमने मंथली चार्ट में बोला था कि बुलिश बार फॉर्मेशन की कोशिश होगी, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे फॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो याद रखना, साइडवेज मार्केट टू बुलिश मार्केट ये ज्यादातर रहेगा, लेकिन एक आध वीक बेरिश रह सकता है. अगर ऐसा है तो मैं वापस एक बार इसको डेली चार्ट में जा रहा हूं ताकि हम इसको थोड़ा सा क्विकली एनालाइज करें. डेली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट में हमें 50 के ईएमआई को रेजिस्टेंस 8,228 पे, सो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट करके वापस 20 के ईएमआई को आने 8,100 के पास आके सपोर्ट टेस्ट करें. सो मार्केट फिलहाल 8,228 और 8,100 इसके बीच में ट्रेड करके कंसोलिडेशन फॉर्म करके फिर ऊपर की तरफ मोड़ कर सकता है. इसका रेजिस्टेंस होगा 8,228 के पास और ऊपर का रेजिस्टेंस है 8,400 का. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर इंट्राडे पैटर्न. हमने काफी डिटेल में जाने की कोशिश करी है. आज थोड़ा लंबा एनालिसिस हुआ क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है, नया हफ्ता शुरू हो रहा है. सो सारी चीजें नई शुरू हो रही है. सो इसके लिए ये व्यू बनाना बहुत जरूरी है. अगर हम इसको आर्ली चार्ट में देख रहे हैं तो आर्ली चार्ट में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आरएसआई ओवरबॉट बता रहा है, आरएसआई इज अबाउट 70. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देख रहे हैं तो इफ यू लुक एट दिस, प्राइस इज मच अबाउट 20 ईएमए. यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फॉर्मेशन है, 50 का ईएमए 100 के ईएमए के नीचे चल रहा है. अब होगा क्या, होगा ये कि अगर प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाता है या साइडवेज रहता है तो 50 का ईएमआई 100 के ईएमआई को नीचे से ऊपर काटेगा, और ये फॉर्मेशन
इनवैलिड फॉर्मेशन होता है तब, जबकि दिखने के लिए प्राइस 20 के ऊपर होगी, 20 का एवरेज 50 के एवरेज के ऊपर होगा और सबसे नीचे 100 का एवरेज होगा। सो 100 और 50 का क्रॉसओवर 20 के नीचे, ये जनरली इनवैलिड क्रॉसओवर हम कहते हैं। और इसका हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस है कि ऐसा जब भी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे, I'll just quickly take you to that period where it had happened। प्राइस यहाँ पे थी, RSI 70 के पास था, ये था ऑलमोस्ट दिसंबर में, 9 दिसंबर को। 50 के EMA ने 100 के EMA को ऊपर की तरफ काटा और उस सिनेरियो में प्राइस इज अबाउट 20 EMA, 20 EMA is above 50 and 50 EMA is above 100 and this brought price further down and remain sideways for some time। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हो, और ऐसा होने के लिए शायद प्राइस को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़े। फिलहाल ये क्रॉस ओवर 50 का होने के लिए प्राइस मूव कर सकती है ऊपर की तरफ, ओवरबॉट है। सो साइडवेज भी रहा तो 100 का EMA फ्लैट होके 50 को टच करे, ये सब बता रहा है कि करेक्शन नेसेसरी है। 8110 ये लेवल सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर हम इसको भी देखते हैं प्राइस को, तो मुझे थोड़ा सा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिख रहा है। ये शोल्डर है, ये बड़ा सा हेड है और ये अगेन शोल्डर है। ऐसा है तो फिर 8300 के आसपास यानी 8250 से थोड़ा सा ऊपर का टारगेट निफ्टी बना रहा है, प्रोवाइडेड ये अगर हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड फॉर्मेशन है। अब कंफ्यूजन ये है कि करेक्शन होगा कि 8300 का अचीव करेगा। सो चांसेस होंगे कि साइडवेज रह के नेक लाइन अगर ये है और ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, तो ये नेक लाइन है और इस नेक लाइन को सपोर्ट के रूप में टेस्ट करने के लिए निफ्टी को नीचे आके वापिस ऊपर जाके 8300 की लेवल को टच करना पड़ेगा। सो आने वाले पीरियड में ये होने के चांसेस होंगे। सो बेरिशनेस टू कंसोलिडेशन एंड देन मंथली चार्ट के हिसाब से आने वाला मंथ बुलिश। सो एट द एंड ऑफ द मंथ शायद हम लोग बुलिशनेस फॉर्म करने की कोशिश करें, यानी 8300 अचीव होगा, लेकिन शायद नेक्स्ट फोर्टनाइट होगा। अभी कंसोलिडेशन टू बेरिश रहेगा शायद। सो करेक्शन नेसेसरी है, आर्ली चार्ट बता रहा है कि करेक्शन नेसेसरी है। 8100 के आसपास सपोर्ट की जरूरत है और हमारे लिए ये 8100 का सपोर्ट ये भी बता रहा है। 100 EMA भी यहाँ वीकली चार्ट में बता रहा है कि सपोर्ट के रूप में आ सकता है। हमारा डेली चार्ट एनालिसिस भी हमें यही एडवाइस कर रहा है कि 20 के EMA को ये सपोर्ट के रूप में टेस्ट करे तो 8100। सो 8100 का सपोर्ट और 8250 का रेजिस्टेंस, इस ब्रैकेट में आने वाला है कुछ हफ्ते मार्केट रहेगा। ये हमारा एनालिसिस है। ये एनालिसिस फॉलो करने के लिए, इसको सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे पैटर्न कोई नहीं है, करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मैं इस 8100 की लेवल पे निफ्टी अगर मुझे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, देन आई विल कम आउट विथ स्ट्रेटेजी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड थैंक यू एंड गुड डे।